So today we are going to study a new topic called as simple DC motor. Simple DC motor. And whatever diagram I will draw it, you have to draw in your notebook. DC का मतलब यहाँ हुआ direct current. We have to study direct current and alternating current after studying DC and AC motor. Now what is DC motor? It is an electrical motor or it is an electrical device which converts electrical energy into mechanical energy. It is a device which converts electrical energy into mechanical energy. Now, ये तो समझ में आ गया कि what is DC motor, electrical to mechanical. Now, on which principle it works? ये किस प्रिंसिपल पर काम करेगा? वो प्रिंसिपल पहले सबसे जानना है. Principle. Principle already we have studied in the previous class. The principle is when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force and that force rotates the coil of the motor. यही प्रिंसिपल है जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे. When an electric current is passed through a conductor placed normally or perpendicular in a magnetic field, the conductor experience a force and begins to rotate and work is obtained. So this is the principle on which it works. जब भी हम करंट पास करेंगे कंडक्टर में and when that conductor is placed between the magnetic field, वो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा and because of that force it begins to rotate. उसमें रोटेशन होगा and when it rotates, with that rotation work is obtained और उससे हम काम ले सकते हैं. Now, where this motor is used, where we see this DC motor, simple DC motor. Uses
इसका यूज कहां कहां देखते हैं? इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर, हेयर ड्रायर, etc. These are some of the electrical devices where we see electric motor. Now, अब इसके बारे में पढ़ना है, इसका पार्ट्स, क्या क्या इसमें पार्ट्स लगता है और इसका वर्किंग. So I am going to rub all these things. I think you might have noted down. Now the parts of electric motor, construction and its parts. Construction and its parts. Now the first part of this electric motor is armature coil. Armature coil. What is called armature coil? Armature coil क्या होता है? तो armature coil is a soft iron core. ये एक soft iron core है. Soft iron core you might have studied in electromagnet also. It is a soft iron core on which the coil is wound. It is a soft iron core on which the coil is wound. यानी कि एक बड़ा सा रॉड होता है और वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है और उस पर बहुत सारा वाइंडिंग्स होता है. किसका? कॉपर कॉइल का, कॉपर वायर का. तो इट इज अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वुंड. लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है उस पर और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं आर्मेचर कॉइल. दैट कॉइल, आर्मेचर कॉइल, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय शोइंग द वीडियो. अभी तत्काल हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसका, ठीक है. तो इट इज अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वुंड. अब इसका फंक्शन क्या है? इस आर्मेचर कॉइल क्या करता है? इट इनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर. It enhances the power of a motor. ये इसका फंक्शन है. It enhances the power of a motor. ये जितना ज्यादा वाइंडिंग होगा उतना ज्यादा मोटर का पावर बढ़ेगा. तो ये मोटर के पावर को बढ़ाता है आर्मेचर कॉइल. नाउ द सेकेंड पार्ट इज split ring. Split ring और इसका दूसरा नाम है कॉम्यूटेटर. कॉम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग और कॉम्यूटेटर. तो स्प्लिट रिंग क्या होता है? देखो, जैसे ये पूरा एक रिंग है, ये एक पूरा रिंग है, ये स्प्लिट रिंग नहीं कहेंगे, ये एक रिंग हो गया. अब इसको हम बीच से इसको हम काट दिया आधा आधा,
अब ये हो गया तुम्हारा स्प्लिट रिंग। एक ही रिंग को आधा 2 सेमी सर्कुलर पार्ट बना दिए, तो अब ये हो गया तुम्हारा स्प्लिट रिंग। तो व्हाट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर? it is a rotatory electrical device that periodically reverses the current direction after every half rotation. After every half rotation. तो स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम है कम्यूटेटर, और इसका काम क्या है? ये कॉपर वायर का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, और ये रोटेट करता है। ये क्योंकि दिस स्प्लिट रिंग इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर कॉइल, तो कोई भी कॉइल होगा तो उसका 2 एंड होगा, ठीक है? तो हमने अभी बताया कि ये और ये, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग। तो आर्मेचर कॉइल का एक एंड इससे कनेक्ट होगा और एक एंड इससे कनेक्ट होगा। तो एज द आर्मेचर कॉइल विल रोटेट, दिस स्प्लिट रिंग विल आल्सो रोटेट, ये भी रोटेट करेगा along with the armature coil, क्योंकि ये आर्मेचर कॉइल से कनेक्टेड होता है। अब when it is rotated, what happens? It reverses the direction of the current. तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि ये रिवर्स करता है, periodically reverses the current direction after every half rotation. हर एक हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन मतलब 180 डिग्री, क्योंकि एक पूरा रोटेशन लेगा तो कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो हाफ रोटेशन होगा 180 डिग्री। तो आफ्टर एवरी 180 डिग्री विच इज कॉल्ड हाफ रोटेशन, करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा, और यही स्प्लिट रिंग उस करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तो इसका फंक्शन हमने लिख दिया है, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। इसी में इसका फंक्शन भी लिखा हुआ है। नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाट इज कॉल्ड द कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश किसको कहते हैं? नाम ही है कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश इज मेड अप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का बना होता है, ठीक है, ब्लैकिश कलर का होगा। एंड ये जो कार्बन ब्रश है ये स्प्लिट रिंग से अटैच्ड रहता है, लेकिन ध्यान रहे कार्बन ब्रश मूव नहीं करेगा, आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा, स्प्लिट रिंग रोटेट करेगा, लेकिन कार्बन ब्रश रोटेट नहीं करेगा, ये अटैच्ड रहता है स्प्लिट रिंग से। तो इट इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, it is a sliding contact used to transmit electric current from static to rotating part of a motor as it is connected
to a battery. तो कार्बन ब्रश का फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. कार्बन ब्रश इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट इज अटैच्ड टू द स्प्लिट रिंग एंड ये स्टैटिक है. कार्बन ब्रश डज नॉट मूव, ये रोटेट नहीं करेगा, इट इज स्टैटिक एंड इट इज अटैच्ड टू द स्प्लिट रिंग और ये प्रोवाइड करता है तुमको करंट. कैसे प्रोवाइड करेगा करंट? बिकॉज कार्बन ब्रश को करंट जा रहा है थ्रू द बैटरी. लाइक दिस, सी द फिगर. यह है तुम्हारा स्प्लिट रिंग, ठीक है, और यहां पर कार्बन ब्रश अटैच्ड रहेगा. दिस इज द कार्बन ब्रश. ये कार्बन ब्रश हो गया, ठीक है, और इस कार्बन ब्रश से बैटरी अटैच्ड रहेगा लाइक दिस. ये लाइक दिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट लाइक दिस. तो ये हो गया कार्बन ब्रश B1, ये हो गया कार्बन ब्रश B2, ये आधा जो हो गया इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग. ये हो गया तुम्हारा स्प्लिट रिंग S1 और ये हो गया स्प्लिट रिंग S2. तो स्प्लिट रिंग रोटेट करेगा क्योंकि स्प्लिट रिंग किससे कनेक्टेड है? आर्मेचर कॉइल से. तो आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा, साथ में स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेगा. बट कार्बन ब्रश रिमेन्स स्टैटिक, ये स्टैटिक रहेगा, ये हमेशा इससे अटैच्ड रहेगा एवरी टाइम, ये इससे कभी कॉन्टैक्ट से नहीं हटेगा. तो क्योंकि जैसे ही इसके स्प्लिट रिंग के कॉन्टैक्ट से हटेगा, what will happen? The current in the split ring will break. So what will happen? It is always attached to the split ring and the current is provided to the split ring by the carbon brush. और कार्बन ब्रश को कहां से मिल रहा है करंट? By the external source, that is battery. This is the arrangement of carbon brush and split ring.